Okay, kindly confirm if I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So, is there any noise out from outside? No, fine. See, so in previous few lectures, what we have seen is one-dimensional array and two-dimensional array. And you may feel that when I was teaching you C programming, that time uh, I was focusing more on practical part. I was most of the time I was writing programs and all. But the moment we entered into the data structure, I am writing less programs. It's because here I do not have to teach you how to write programs, but to tell you what are the different properties that we can use, what are the different limitations, what is the power, how memory is working. So data structure, when we are talking about data structure, uh, it is a part of your programming language, meaning how you structure a data, meaning how you uh, store a data, and how efficiently we do computation is a part of algorithm that you will have course in fourth semester. The first semester was like C, where you people were learning how to write code in C programming. Now we are learning in data structure how could we efficiently store data. Now how to store data such that our program would be efficient. है ना? So kind of storage. So since it is based on a storage, so we have to focus on the memory, that how computer actually store different parts of the data structure. Anyway, so we have seen one dimensional array, we have seen two dimensional array. We will see in next few lectures, we will see three dimensional array and n dimensional array also, of array of having any dimension. And from that point you will be clear that okay, what exactly the um, change I should consider in each and every array concept. Now today I would like to focus on this array of pointers, right? So the moment I tell you this is an array of pointers, what comes in your mind? Anyone? Could you please share what do you mean by array of pointers? Meaning what comes in your mind? क्या तुम्हारे दिमाग में क्या आया when you heard array of pointers? अरे Array itself a pointer. बोलो. ओके, अभी तक हम लोगों ने देखा array of numbers, है ना, array of integers, है ना. So whenever I was saying int a of 5, this is array of integer. When we are saying float a of 5, that is array of float. And if we are saying char a of 5, meaning array of characters, है ना, this is nothing but array of characters. So if this is an array of characters, so array of characters, this is array of float, array of int. So this is something we should say that array of pointers. So एक ऐसा array, अब उसका टाइप कुछ भी हो सकता है ना, अब कि ऐसा array जो कि क्या रखे, बस pointers रखे. Whenever we say pointer, we mean to say कि the content would be address. ये जितने भी इसके कंटेंट होंगे ना, इस कंटेंट में कोई इंटीजर वैल्यू, कोई फ्लोट वैल्यू, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं रहेगी, बट दीज विल कंटेन एड्रेस, राइट. अब किसका एड्रेस रखेगा? किसी इंटीजर का एड्रेस रख सकता है, किसी फ्लोट का एड्रेस रख सकता है, ठीक है. तो इसके लिए इसके पीछे इंट या फ्लोट लगाया जाता है. इंट लगा दिया मतलब ये एरे ऑफ पॉइंटर जो है, वो जिसका एड्रेस रख रहा है वो क्या है? इंटीजर है. एनी कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. No, sir. है ना. मेरे पास चार वेरिएबल है, एक है आई, दूसरा जे, तीसरा के एल.
तो आई क्या होगा, आई होगा इसमें कितनी वैल्यू 31, इसका कोई अपना एड्रेस होगा, ठीक है। जे होगा एन के एंड एल, राइट। इसमें 5 है, 19 है, 71 है, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, राइट। अभी क्या कर रहे हैं, एक एरे मैंने बनाया ऊपर, ऊपर मैंने एक एरे बनाया है स्टार ARR ऑफ साइज 4, है ना। तो ये एक मैंने एक एरे बनाया है कितने साइज का, 4 साइज का, ठीक है। इसका नाम है ARR, राइट। तब ARR के जीरो में क्या चला गया, एड्रेस ऑफ आई। तो आई का एड्रेस क्या है, 1010 है, इसका एड्रेस 2010, 3010, 4010, और ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, इसका खुद का भी अपना एड्रेस होगा, 5010, 5014, 5018, 5022, राइट। तो इसका खुद का अपना भी एड्रेस है। ये एग्जाम एज इट इज जैसा पहले एरे होता था वही है, बस अभी क्या चेंज हो रहा है, इसका कंटेंट चेंज हो रहा है। कंटेंट क्या है ना, कंटेंट इज एड्रेस, और सिंस कंटेंट एड्रेस है इसलिए ये क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर्स है, क्योंकि एड्रेस तो बस पॉइंटर ही रख सकता है। समझ में आ गई बात, क्लियर, राइट। Yes, sir. यहाँ भी वही चीजें उस फिगर में इसने बताया है कि आई है, जे है, सबका अपना एड्रेस है, तो ये क्या रख रहा है, लाइक ओके। देन 3 डायमेंशनल एरे, जिस तरह हम लोगों ने 2 डायमेंशनल एरे देखा उसी तरह 3 डायमेंशनल एरे होता है। अब 3 डायमेंशनल एरे से 2 डायमेंशनल एरे को पिक्चर से हम 1 डायमेंशनल एरे को हम लोग ऐसे दिखा सकते थे, 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। सपोज ये कितना बाय कितना है, 3x4, सो ये 2D एरे है, 1 2 3, ये इसका साइज कितना है 4, इसका साइज कितना है 3x4, है ना। अगर हम एक 3 डायमेंशनल एरे बनाना चाहते हैं 3x3x2 का या 3 का, ठीक है, मतलब 3x3 का कितना, 1 2, ये पहला 3x3 हुआ, ठीक है। इसका मतलब समझो 3x3 का 2D मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, है ना। सो दिस इज द केस, सो ये 0th, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3 एरे हुए, है ना। अब इन 3 एरे में हर एरे का क्या है, 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर तुमको कोई बोलता है 0 0 0, मीनिंग ये तीनों में से कौन सा एरे 0th एरे, उसका 0 0, यानी कि ये वाला पहला एलिमेंट, ये इस एलिमेंट की बात हो रही है। अब कोई बोलता है 2 1 2, मतलब सेकंड एरे इस एरे का 1 2 वाला, यानी 1 2, यानी इसकी बात हो रही है। समझ में आई ये बात, तो बताओ यस और नो, लेकिन सिंपल। नो सर। No, sir. क्या हुआ, सर नहीं आया समझ में। क्या नहीं आया, सर एक बार वापस बता दो शुरू से। एक मिनट, अरे स्टार्ट से ही बता रहा हूँ बच्चे, 3D एरे, ये देखो मल्टी डायमेंशनल एरे की बात हो रही है। ये देखो, ये ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, ये दूसरा 2 डायमेंशनल एरे है, ये तीसरा 2 डायमेंशनल एरे है ना। अब तीन 2 डायमेंशनल एरे को अगर मैंने रख दिया
है ना, इसको लेते हैं। तो ये एक 3 डायमेंशनल एरे हो गया। डायमेंशन का क्या मतलब, जब तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो तो फायदा क्या है। डायमेंशन का मतलब क्या है कि 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। 2 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बस एक इंडेक्स की जरूरत होती है। 1 डायमेंशन को 1 डायमेंशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक इंडेक्स की जरूरत होती है। 2 डायमेंशनल को में 2 इंडेक्स की जरूरत होती है, और 3 डायमेंशनल में ज्यादा इंडेक्स की जरूरत होती है, यानी 3 इंडेक्स की जरूरत होती है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग अभी देखो बेटा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। एक 1 डायमेंशनल एरे को कैसे लिखते हो, इंट ए ऑफ 5। कुछ नहीं समझने वाली बात ही नहीं है, पढ़ते नहीं हो। ऐसे में तो कोर्स लटक जाएगा ये। मैं छोटा लेता हूँ, ए ऑफ 4 लेता हूँ। 1 2 3, है ना। इसमें दिक्कत क्या है, ये 0 1 2 3 किसी भी एलिमेंट को लेने के लिए क्या सर लिखना पड़ता आपकी है, ए ऑफ स्क्रीन 0। शेयर नहीं हो रही है। सर स्क्रीन अभी भी क्रोम ब्राउजर ब्राउजर भी खुली हुई है। ओके, अभी आ रही है। यस सर। तो ये एक 4 साइज का है, ये मैंने एक लिया। इसमें क्या है, 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट्स है। अभी मैं ए ऑफ 0 बोलूंगा तो क्या बोलोगे तुम, 5 बोलोगे कि नहीं बोलोगे। क्यों, एक ही इंडेक्स यूज हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए ये 1 डायमेंशनल एरे है। मतलब यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक इंडेक्स काफी है, एक इंडेक्स से ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन द मोमेंट हम तुम ऐसा लिखते हो ए ऑफ 2 क्रॉस 2, ठीक है, तो ये एक ऐसा एरे क्रिएट होता है। लेट इट बी 3 क्रॉस 3, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऐसा क्रिएट होता है। अभी ये अगर ए है तो हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें 2 इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं अभी यहाँ इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ 1। यहाँ पे सिंगल इंडेक्स यूज हो रहा था, यहाँ डबल इंडेक्स यूज हो रहा है। 2 इंडेक्स इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि इसमें से ऐसे निकाल ही नहीं सकते हम, लाइक योर कोऑर्डिनेट्स। तुम किसी कोई भी अपने घर का लोकेशन सिंगल वैल्यू में नहीं बता सकते हो, एक्स वाई देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। इसी तरह 3 डायमेंशनल एरे है। 3 डायमेंशनल जिस तरह से 2 डायमेंशनल एरे वाज नथिंग बट दी स्टैक ऑफ, कितना है ये एक 3 क्रॉस 3 का है। मतलब क्या, 3 1 डायमेंशनल एरे है इसमें, है ना। यही मैं बता रहा था, हाँ ना बोलते चलो ताकि मैं समझू कि तुम लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। यस इसमें सर। है ना यस सर। 3 1 डायमेंशनल एरे है, ध्यान से देखो, ठीक है। दूसरा है, और ये तीसरा है ना। 3 1 डायमेंशनल एरे हैं। इसी तरह से जब हम लोग 3 डायमेंशन हम लोग आते हैं इंट ए 3 क्रॉस 3 तो ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या करता है, मतलब बता रहा है 3 क्रॉस 3 के 2 डायमेंशनल एरे है। यहाँ क्या बता रहा है, तीन तीन 3 साइज के 1 डायमेंशनल एरे हैं। 3 साइज के 1 डायमेंशनल एरे हैं, है ना। ये बता रहा है 3 क्रॉस 3 के 2 डायमेंशनल एरे हैं। तो पहले 3 क्रॉस 3 का 3 अलग अलग बना लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। और तीसरा एक और कोई ले लेते हैं, है ना। ये 3 हो गए ना। अब 3 से तुम देखो, ये 0th एरे मैं इसको बोल रहा हूँ। ये पूरा एक सिंगल एरे है, इसका नेम है ए। यहाँ पे ये एक सिंगल एरे था, इसका नेम था ए। यहाँ ए एक सिंगल एरे था, इसका नेम था ए, इसका नेम है ए। तो ये 0th हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब इसके अंदर ये 0 1 2 है, 0 1 2 है,
दिस इज 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। तो अगर इस एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ए का जो सेकंड वाला है, ए का जो सेकंड वाला है ना, इसको देखो, इसको देखो, ए का जो सेकंड वाला है उसका 1 of 1, राइट। अभी इसको एक्सेस करना होगा तो क्या बोलेंगे, कौन बताएगा। इसको एक्सेस करना है सर तो क्या जीरो बोलेंगे, वन टू, सर जीरो का 1 2, 0 का 1 2, परफेक्ट 1 2। है ना, वही सेम है जैसा पहले था, सेम है। अभी इसको फ्लैटन करेंगे, इसका देखो, अभी व्यू देखो तो ऐसा ऐसा देख सकते हैं ना, ये 3 2 डायमेंशनल लैरे है ना, इसको सुपर इम्पोज कर दिया तो ये मेरा क्या बन गया, 3 डायमेंशनल लैरे बन गया। 3 डायमेंशनल लैरे डजंट मीन, मतलब अभी इसको अगर मैं एक्सपेंशन फॉर्म में देखूं, ठीक है, तो 3 डायमेंशनल लैरे को जैसे हम लोग एक 1 डायमेंशनल लैरे को कैसे डिक्लेयर इनिशियलाइज में अगर करता हूँ, तो इट इज लाइक, अगर मैं छोटा सा ही लेता हूँ 1 2 3, ये मेरा एक 1 डायमेंशनल एरे हो गया। अगर मैं एक 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करता हूँ, सपोज 2 × 3, राइट। सो हमारे पास 2 रोज है, हर रो में 3 3 एलिमेंट है, तो 1 2 3 पहला रो, 4 5 6 दूसरा रो, खत्म, खत्म हो गया। अगर मैं एक 3 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सो इट इज 2 × 3 × 3, मतलब कितने एलिमेंट है हमारे पास, 2 एलिमेंट है, ठीक है। पहला एलिमेंट, पहला 2 डायमेंशनल एरे, और एक कॉमा, दूसरा 2 डायमेंशनल एरे और क्लोज, है ना, दो है ना हमारे पास, दो 2 डायमेंशनल एरे है। और इस 2 डायमेंशनल एरे का साइज क्या है, 3 × 3, यानी 3 रो है और हर रो में 3 कॉलम है। तो पहला रो 1 2 3, दूसरा रो 1 2 4, तीसरा रो 2 4 6, ठीक है। अभी ये हो गया पहला, अभी सेकंड 5 6 9 एंड 3 4 2 1 9 6। जस्ट a minute, wait. Uh, if you have any query, ask me. Just look at this. तो when we were flattening में हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि इसको जब अपने स्टोर करते हैं इस वाले एरे को, तो ये कुछ ऐसा स्टोर होता है, 1 2 3, है ना, ये ए ऐसे स्टोर होता है, 0 1 2, एड्रेस इसका ऐसे ही रन होता है, 1010 1014 एंड 1018। इसको जब फ्लैटन करते हैं तो कैसे फ्लैटन करते हैं हम दो 1 डायमेंशनल एरे है, इसमें 3 3 है दोनों ही में, है ना, तो इसमें चलाया जाएगा 1 2 3 4 5 6, और एड्रेस एकदम वैसे ही होगा जैसे 1 डायमेंशनल एरे में होता है, एड्रेसिंग में कोई इश्यूज नहीं है। सेम यही चीजें यहाँ भी होंगी, है ना, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यूजुअली पढ़ाते समय एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि यू शुड रियलाइज कि ये दो अलग अलग, तो लेट मी सी, ठीक है। यहाँ क्या है, दो, तो दो पार्ट में तोड़ दिया, 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 है, यानी कि अभी इसमें क्या होगा हमारा, 3, इधर भी 3, और हर किसी के अंदर 3 3 एलिमेंट, हर किसी के अंदर 3 3 एलिमेंट।
Now if I used to fill this, what will come? Sorry. It will be 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 6, 5, 6, 9, and 3, 3, 4, 2, 1, 9, 6. And addressing will be exactly same. 1010, 1014, 1018, 1022, 1026, 1030, 1034, 1038, 1042. Likewise, it has name A. So I am not defining anything new. I'm just correlating everything at the same instant. एक ही जगह से मैंने दिखाया. ये बातें समझ में आई? हम लोग सबको कोड करके देखेंगे. डोंट वरी. ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग हर किसी चीज को कोड करेंगे. पहले इसको लिनियरिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है कि ये है क्या, करते कैसे हैं, दोनों तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एरे में. एरे समझना सबसे ज्यादा कंपलसरी चीज है. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एरे, डाटा स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. और एरे समझ में आता है तो वैसे भी प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत आसान है ना. चलो कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ. क्या क्वेश्चंस सब पूछ रहे हैं? लाइक Ushan was asking, like in simple array, the array name itself is a constant pointer to its first element, but in this case, the array itself is an array. So is there? नहीं, array itself is an array क्या? ये क्या मतलब हुआ? Array name हमेशा, ये तो मैं थोड़ा, आप लोग रीजनिंग नहीं करते हो ना. रीजनिंग करोगे तो थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा. यहाँ देखो, array का नेम है तो इसका array name is constant pointer to its first element. फर्स्ट एलिमेंट क्या? ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. इस केस में array name is the constant pointer to its first element. फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस array का? कौन बताएगा? 1010 नहीं, इसका फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 डायमेंशनल array. ठीक है, समझ में आई बात? यस सर. समझ में आई बात? यस सर. यस सर. तो अब एक क्या वैल्यू क्या होगा? दी इट इज कांस्टेंट पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट. अब इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है? इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो खुद इसके फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वही इसका एड्रेस है ना. फाइनली तो यही एड्रेस एक्चुअली अब इसके पास जाता है, लेकिन एक्चुअली ये इट इज पॉइंटिंग टू दिस होल. नेक्स्ट, इसमें भी जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ए का वो कौन है? ये है इसका फर्स्ट एलिमेंट. अब इस फर्स्ट एलिमेंट का कौन बताएगा? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? किसके एड्रेस पे डिपेंड करेगा इसका एड्रेस? ए का फर्स्ट एलिमेंट. ये कांस्टेंट पॉइंटर टू दिस, इसके लिए कांस्टेंट पॉइंटर है, इसका कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है ये, है ना. तो अब इसका अगर कांस्टेंट पॉइंटर है तो ये पहला एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? कैसे निकालेंगे? दैट इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ इसका पहला एलिमेंट. ये अब इसका पहला एलिमेंट का एड्रेस हमको अभी तक नहीं पता है ना. so that we will need to find out that is the address of this. so इसका एड्रेस is the address of this, इसका एड्रेस is the address of this, इसका एड्रेस is the address of address whom is pointing. समझ में आई बात? यस सर. यस सर. ठीक है, इस चीज को समझो. अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैठेंगे तो जंप को देखेंगे और फिर आगे प्रोग्रामिंग करेंगे. इस वीक में ही इसकी प्रोग्रामिंग खत्म करेंगे. ठीक है. और असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करते हो तुम लोग? सर बताओ. कोड सेफ पे तो कर दिया था. व्हाट्सएप पे कर दिया है. यहाँ पे तुमने रिफ्लेक्ट किया क्या? यहाँ पे रिफ्लेक्ट सर किया क्या? रिफ्लेक्ट कैसे करना है? रिफ्लेक्ट क्या करना है? यहाँ पे तुम्हें Screenshots? व्हाट्सएप का लिंक डालना है ना.
ये ओके स्क्रीनशॉट सर। डालना, कुछ तो डालोगे ना ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि हाँ ठीक है तुमने सबमिट किया नहीं किया, है ना। देखो इतने लोगों ने तो अभी तक मिसिंग है, कुछ नहीं किया, इतने लोगों को मैं ग्रेड सर कर चुका प्राइवेट हूँ। कमेंट, सर प्राइवेट कमेंट करके उसको कर हाँ सकते हैं हाँ ना? चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो स्क्रीनशॉट लगा के रखा है इसने, ये सबसे बेस्ट वे होगा ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। कि दिख, स्क्रीनशॉट लगाओ कि कहाँ मैंने हाँ सबमिट किया है, वो दिखना चाहिए। ओ अच्छा, ये आपकी स्क्रीन ओके शेयर सर। नहीं हो दिख रही नहीं है। रहा, तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, सॉरी। ये देखो इसने स्क्रीनशॉट लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसने गलत लगाया क्या, जो सॉल्व किया वही लगाना है ना, तो दैट दैट इज एक्सेप्टेबल। यू शुड एक्नॉलेज मी कि हाँ ये मैंने सबमिट कर दिया नहीं कर दिया, तो ये क्लासरूम से रिफ्लेक्ट किया करो, ठीक है। सॉल्व करो, बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बहुत सारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करनी बाकी है। और ये मैंने अभी असाइनमेंट रखा है, ये असाइनमेंट तो किसी ने देखा भी नहीं होगा अभी तक, है ना। ये हैकर रैंक पे जब जाओगे तो तुम्हें 30 डेज का ये मिल रहा है ना कोड, तो इसमें इफ यू विल ज्वाइन, सपोज, है ना, तो यहाँ चैलेंज को सॉल्व करो, हर दिन तुम्हें एक एक प्रॉब्लम मिलेगा। तो ये तो पाइथन का है, यूज पीपल शुड सेलेक्ट सी प्रोग्रामिंग, है ना, तो उस टाइप का तुम्हें मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सर ये बहुत टफ है, तो क्या है, ये बहुत टफ है सर। बस तुम्हें पहला जो ही टफ हुआ लगे ना वो हेलो वर्ल्ड। पूछना, तो तुमने ग्रुप में पूछा ही नहीं क्या टफ लगता है तुम्हें। बेटा टफ ही सॉल्व करना है, आसान तो सब सॉल्व कर लेंगे। जब तुम इंटरव्यू में जाओगे रिटर्न के लिए ना, तो वहां बहुत लोग आएंगे आसान आसान सीखे हुए, तुम्हें इसीलिए तो प्रिपेयर करना है, इसलिए तो तुम आइनर्चर के स्टूडेंट हो कि तुम्हें इस लेवल पे बन के आना है, टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, सर कभी उसमें बहुत ऐसा सारी थोड़े ना चीजें ऐसी है जो पढ़ी नहीं है अभी। हाँ तो बताओ ना, डिस्कस करो, सर ये वाली चीजें नहीं पढ़ी है, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्लासेस में डिस्कस करूंगा। देखो मैं वन बाय वन प्रॉब्लम के थ्रू तो जाता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि कहाँ कोडिंग में हम इस वीक में जितना हमारे पास टाइम है उसमें हमारे बच्चे क्या क्या कोड कर सकते हैं, तो मैं कोडिंग निकाल के लगाता हूँ। अब उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग तो ग्रुप में भी नहीं डालते हो, पूछते भी नहीं हो क्लास में। फर्स्ट जब भी कोई इशूज आए ना, उसको ग्रुप में रखो, प्राइवेट मैसेज करने की भी मुझे जरूरत नहीं है, ग्रुप में रखो कि सर ये वाला पार्ट जो है ये नहीं पढ़ा हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे में या तो कुछ लोग जो पढ़े होंगे वो बताएंगे, या फिर तुम्हारे सवाल बहुत लोगों के मन में होंगे, तो मैं मुझे एक जगह आंसर करने से आसान होगा काम, ठीक है। सो फोकस ऑन दिस और सॉल्व कीजिए, मैं अभी और भी असाइनमेंट पुट करने वाला हूँ। इसके लिए तो 1 महीने का टाइम मिला ना आपको, हर दिन एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके, वी विल डिस्कस रेस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। और किसी को कोई कंफ्यूजन था लास्ट क्लास में, पता नहीं कोई बोल रहा था, मुझे मुझे याद सर नहीं क्या मैंने कंफ्यूजन भेजा था। था आपको लास्ट क्वेश्चन का। कौन सा वाला। हाँ सर, वो लास्ट क्वेश्चन 28 एलिमेंट वाला। हाँ उसमें तुम्हें समझ में आई बात या नहीं बताओ। सर, उसमें तो 26 आएगा ना। 26 आएगा, चलो देखते हैं। एक मैं एरे लेता हूँ इंट ए ऑफ 4 साइज का, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तुमने ना इसको स्केच नहीं किया होगा इसीलिए। ये ए है, 1 2 3, तो इसमें क्या एलिमेंट है, 5 6 7 8, है ना, 0 1 2 3। तो अगर मैं बोलता हूँ ए ऑफ 3, तो ये कितना एलिमेंट रखा हुआ है, 4 एलिमेंट है ना इस एरे में। अगर लास्ट एलिमेंट ए ऑफ 3 है तो टोटल 4 एलिमेंट है कि नहीं एरे में, ये बताओ। सिंस ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो ये 4 होता, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 4 होता, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 3 है। इसलिए अगर कभी भी वहां नम 27 था और बोला कि नम, और ये जो है वो लास्ट एलिमेंट है, तो इस एरे में कितने एलिमेंट होंगे,
तो इस एरे में 28 एलिमेंट हो गए। ये अगर लास्ट इंडेक्स है तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? 0 1 2 3 4 टिल 27। तो यहाँ से यहाँ तक तो 27 हुआ, प्लस 1 28। समझ में आई बात? ओके सर। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।